हेलो स्टूडेंट्स, आज आम स्टार्ट करवा गला वीडियो रे मु फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को विषय रे आलोचना करी बोली कही। आज आरंभ करवा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यू नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन माने घर्षण। बर्तमान मु नेबी ग्लास ग्लास सिंपल नवा ग्लास रड नवा। ग्लास रड जेकोसी पीस तमे काच ग्लास भी यूज कर पारो। ग्लास रड सहित मु रब करी। रब माने घसीवा सिल्क। ग्लास रड रब विथ सिल्क। रब माने घसीवा। बर्तमान आम घसीवा काकू ग्लास ग्लास माने काच काच को आम सिल्क कपड़ा रे घसीवा। घसीले कौन हम एटा एक्सपेरिमेंटाली प्रूव है कि ग्लास रड लूज इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन अर्थ इलेक्ट्रॉन छाड़ी बसे छाड़िले कौन हो इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज हो गला प्लस हो। सो ग्लास रड बिकम्स पॉजिटिव। ये जो लूज इलेक्ट्रॉन कला से जीव कोठी की ना सिल्क ताको एक्सेप्ट कर नबो। तेणु आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नेगेटिव। सो when glass rod rubbed with silk, glass rod becomes positive due to loss of electron. Silk becomes negative due to excess of electron. सी acceptor ये होची loser. जेतबेले एटा glass rod rubbed with silk, the electricity produced means charge produced. Charge means this is called to initially in neutral stage. Initially in neutral. Now when it rub with the silk, it loses electron. Loses electron means it becomes positive. That is your positive charge. So glass rod becomes positive. Accepts electron, this is called your negative. तेणु ये चार्ज बेस को आसीगला, ये प्लस चार्ज बेस को आसीगला। चार्ज बेस को आसीगला माने ताको हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होला बोली कहबा। So this is called your frictional electricity. So frictional electricity means when one substance rub with the second, first one जहाँ को तुम रब करथुओ it will be positive and second one is negative. It is experimentally proved in laboratory. ठीक अछि। सेमति केतेटा एग्जांपल मु तुमको देबी जोटा कि तमर एक नंबर या आसीबो काउंसिल रे। ग्लास रॉड सिल्क की तमे जानि गलो। ग्लास विथ सिल्क। कैट स्किन बिलेई लोमो साधारण अर्थ रे हम कहबा विथ इबोनाइट कार्बन बेस कार्बन रो पीस खंडे एटा को जतबेले आ सहित रब करबो ताल कोन दिस लूज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सिमिलरली वूल पीस तमे जानिछो स्वेटर पिनछो वूल सहित आमी वूल रब विथ वूल को कहा सहित अंबर। So this is called to lose electron, this is called to gain electron, positive negative. Similarly dry hair तमे मुंड कुंडौचो ड्राई हेयर तमरो शाम्पू फाम्पू कर देइचो ड्राई हो जाइची ऑयल अंश नाही ता देरे कम माने पानिया ताहले कोन हबो ये हे जीवो गेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ये हे जीवो लूज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। So this type of electricity produced by charge produced means electricity produced called frictional electricity. Okay. Next, आमी जीवा interaction of charges. You know, interaction between charges. Interaction between two charges means charge is two types. One is positive charge, one is negative charge. This is simple. No third charge possible. दुईटा चार्ज आम पाइबा गोटा को पॉजिटिव करछे गोटा को नेगेटिव। आको भितर इंटरेक्शन हबो। इंटरेक्शन अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसी पारे फोर्स ऑफ रिपल्सन आसी पारे। सेति पई
जो फोर्स क्रिएट हबो से फोर्स रो मैग्नीट्यूड पाइन कूलम गोटे लॉ देइछनी कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक Coulomb's law कौन कहले? It states that force of attraction or repulsion is directly proportional to product of charges. Data charge जब मुने भी this is equal to your Q1, this is equal to Q2. Distance is center to center, this is equal to your R. So Coulomb's force, जो force create हबो either repulsion or attraction. That force, amount of a force, is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance. Distance means एटा को जते तुम spherical body धरिबो center to center distance, that is equal to your R. Combining these, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. This is equal to your Coulomb's law. Okay, बुझी परछो? Now you omit your proportional, directly proportional. So F जेतबेले तमे proportional चिन्ह उड़ेइबो सेतबेले कोन आसीबो is equal to your beta. Beta is the proportionality constant. That is equal to Q1 Q2 by R square. This is equal to your proportionality constant. In CGS system, beta टाको आमी जनरली 1 by k नोचे. सिस्टम ऊपर डिपेंड करूची ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का भीतर डिपेंड करूची का ऊपर डिपेंड करूची दिस इज इक्वल टू योर पॉजिटिव चार्ज दिस इज इक्वल टू योर सपोज पॉजिटिव चार्ज दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन पॉजिटिव नेगेटिव योर अट्रैक्शन दिस इक्वल अमाउंट एटा को Q1 नउची दिस इज इक्वल टू Q2 जे कोन चार्ज तुम नहीं करो दीटा पॉइंट चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू योर R ये बीटा का चार्ज भीतर कौन मीडियम रहउची तारी ऊपर डिपेंड करे वैल्यू ऑफ बीटा एंड का ऊपर डिपेंड करे ना यूनिटी को तुम कौन यूज करछो आइदर एसआई यूनिटी और सीजीएस यूनिटी वर्तमान बीटा वैल्यू एटा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ताको 1 by k नउची सीजीएस को जतबेले आमे जिबा k हि जिवो 1 दैट इज इक्वल टू इन एयर रे सीजीएस सिस्टम रे k इज इक्वल टू 1 k is equal to your dielectric constant. ये जो proportionality constant is equal to 1 by k is dielectric constant. Dielectric constant कौन ना जो मीडियम आमे यूज करिबा Q1 Q भितरे से मीडियम एयर रही पारे कार्डबोर्ड रही पारे पेपर रही पारे जहाँ तुम से मझी रे जहाँ रखिबो ताको आमे मीडियम कहबा ये मीडियम रो कैरेक्टर ता योर व्हाट बीटा जोटा कि 1 by k हिसाब रे यूज करा होछि त k ता कौन ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन ना आई मीडियम भीतर तुम कौन रखुछ दैट इज इक्वल टू योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तल k इज इक्वल टू 1 हे गले f इज इक्वल टू कौन हे जिवो ना Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कने इथे तमरो 1 by बीटा सॉरी बीटा अछि बीटा इज इक्वल टू 1 by k इज इक्वल टू 1 दैट इज 1 सो दिस इज इक्वल टू योर 1 सो f इज इक्वल टू Q1 Q2 by r स्क्वायर जदि SI सिस्टम का जिबा SI सिस्टम रे बीटा ही जिवो केते ना 1 by 4 by epsilon 0 इन एयर मीडियम को जतबले जिवो 1 by 4 by epsilon दिस इज इक्वल टू एनी मीडियम ओके एयर रे 1 by 4 by epsilon 0 इन मीडियम 1 by 4 by epsilon ए epsilon कथा हमें पछर आलोचना करबा हमें जिबा कूलम्स फोर्स कोन हे गला एसई सिस्टम रे 1 by 4 by epsilon 0 Q1 Q2 by r square बीटा जगह में लिखि परिबा 1 by 4 by epsilon 0 फॉर एयर मीडियम को बोले f is equal to 1 by 4 by epsilon 0 epsilon Q1 Q2 by r square मेटा लिबे दोची दिस इज कॉल्ड इन मीडियम दिस इज कॉल्ड एयर बर्तमान ये जो epsilon कथा हम आरंभ कली epsilon इज इक्वल टू कौन epsilon 0 कौन epsilon कौन
इप्सिलॉन आर गोटे आ विषय आलोचना तुम बर्तमान क्लास करबनी ऑफलाइन रे एगुडा सब जानबनी मुझे विषय रे टिके आइडिया दूची दिस इज कॉल्ड टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस रे परमिटिविटी ताक मीडियम रो प्रॉपर्टी की इंडिकेट करिवो ये होची कोन इन मीडियम जहा तमे नेथिबो दीटा को चार्ज भीतर दैट इज कॉल्ड टू इन मीडियम बेस permittivity in medium, permittivity in free space. This is called your relative permittivity. Relative permittivity. Okay. ताले ए relative permittivity कौन? ए दीटा को comparison रे. Relative permittivity is equal to your epsilon by epsilon 0. Relation between permittivity in medium by permittivity in air एटा बोलते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर दबा मीडियम इज इक्वल टू आसी जीवो रिलेटिव माने मीडियम एयर दीटांकर कंपैरिजन एंड इप्सिलॉन 0 देन इप्सिलॉन जते बेला हम यूज करिया मीडियम पाई सेते देखो एटी देखो मीडियम रे 1/4 पाई इप्सिलॉन पाई हम यूज करि परिबा इप्सिलॉन आर इप्सिलॉन 0 ठीक है दी Coulomb's law कोड तुम यूज करिवो applicable only point charges very small charge q1 q2 जते बेले यूज हबो ताको भीतर फोर्स बाहर करिया पई तमर Coulomb's law यूज हबो सो Coulomb's law is useful in case of very small charges जाको हमें point charges कहबा आ कोन हेतिबो very close तार तो q1 q2 very small distance भीतर थिबे ताहले Coulomb's law is applicable टू टाइप्स ऑफ चार्ज तुम जानी गलो ये जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज टू टाइप्स ऑफ चार्ज सेति पई गोटे अछि इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ जोटा कि फंडामेंटल लॉ इन चार्ज बेस फंडामेंटल लॉ कौन तमे जदी नबो पॉजिटिव बा नेगेटिव टू लाइक चार्जेस आम कहूचे सिमिलर चार्जेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ताको भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसीबो रिपल्सन सो हम कहि परिबा लाइक चार्जेस पॉजिटिव बा नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर जो फोर्स ता पड़िबो रिपल्सन परस्पर को ठेलिबे सिमिलरली अनलाइक माने डिफरेंट चार्जेस गोटे प्लस हेतिले आ गोटे माइनस होबो सेते बेले कोन आसीबो अट्रैक्शन होबो दीटांग चार्ज भीतर जो फोर्स पड़िबो से फोर्स होबो अट्रैक्टिव इन नेचर तार तो पॉजिटिव नेगेटिव को ताड़ को टानिबो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की ताड़ को टानिबो परस्पर अट्रैक्शन होबो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सो इट स्टेट दैट लाइक चार्जेस repel each other unlike charges attract each other this is the fundamental law of electrostatic जोटा को हम कहउछे इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ जनरल सेंस रे टू टाइप्स ऑफ चार्ज हम यूज करछे नो थर्ड चार्ज पॉसिबल नो थर्ड चार्ज पॉसिबल तार तो तृतीय प्रकार चार्ज नहीं केवल पॉजिटिव नेगेटिव मोटे एग्जांपल नहीं पारिबी तमरो ए बॉडी रब विथ बी तार तो ए गोटे बॉडी बी गोटे बॉडी मु वर्तमान रब कली सपोज दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव लूज इलेक्ट्रॉन दिस इज कॉल्ड टू नेगेटिव गेन इलेक्ट्रॉन बर्तमान थर्ड बॉडी ने भी सी एनी चार्ज बॉडी यू टेक ए टू सी इफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस अट्रैक्शन जदि हेला मु देखिली ए सहित सी अट्रैक्शन हेला ताल को ये जदि ए हेला पॉजिटिव सी ताको अट्रैक्ट करछि ताल सी ता कोन हेतिबो नेगेटिव तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ पढिलो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर सो दिस पॉजिटिव
means C must be negative काहे हमें पाउचे attraction. Similarly, you take C to B. If B repel, you see B is negative, C is negative, automatic repulsion. But it does not possible to attraction. Attraction हे करिवो नाही. It is not possible. कौन से हालत रे जेहेतु इटा हमें पॉजिटिव जानिचे एटा जानले अट्रैक्ट करूची माने ये नेगेटिव हवा को बाध्य. जदि ये नेगेटिव हबो ये रब करी हमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एटा जानिचे नेगेटिव तो नेगेटिव ये आसीगला नेगेटिव रिपल्सन हवा को बाध्य अट्रैक्शन हवार चांस ही नाही. सो नो थर्ड चार्ज पॉसिबल. ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस प्लस एंड माइनस. This is called a Coulomb's law. If you want to write Coulomb's law in vector form, Coulomb's law in vector form. Vector जानते तमें मु टिके कहि दउची. This is a vector. You write vector quantity in terms of a line segment with arrowhead. तेणु गोटे लेटर नहीं जोटा कि वेक्टर क्वांटिटी. इफ राइट दिस इज कॉल्ड टू योर ए, दिस इज कॉल्ड टू योर ए मीन्स वेक्टर रा मैग्नीट्यूड. यदि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए हला ताले वर्तमान ए आकार मु लिखि देली किंतु वेक्टर हबो केमि से मते कोन करियो पड़िबो इनटू ए कैप. ए कैप इज इक्वल टू यूनिटी वेक्टर. यूनिटी वेक्टर किए हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू योर यूनिटी वेक्टर. माने जार मूल्य परमान एक होइदिबो ताको हम यूनिटी वेक्टर कहबा. ताल देखो ए वेक्टर चिन्ह उठेबा को हेले तार मैग्नीट्यूड मु यूज कली. मैग्नीट्यूड यूज करला माने मते गोटे समथिंग लिखिबा पड़ियो. सपोज तमे लिखिबो 5 मते गोटे दिया जिबा रे कोन गोटे इनटू करो. यू मल्टीप्लाई दिस टू गेट 5 अगेन. ताल तमे गोटे संख्या रे कोन मल्टीप्लाई करले अगेन से नंबर पाइबो दैट इज इक्वल टू 1. So this is called to your 1 a. ताले a means scalar quantity. तम वेक्टर पाइबो केमि वेक्टर पाइबो ना यूनिटी वेक्टर टेक इनटू करिवो. यूनिटी वेक्टर रा मैग्नीट्यूड होची 1. तेन a सहित 1 इनटू करले सेही a पाइ जिवो किंतु पाइ गले हमें वेक्टर क्वांटिटी. सो हमें कोन जानले यू सी वी नो a vector is equal to a magnitude a cap पड़िबो दैट इज इक्वल टू यूनिटी वेक्टर. So a cap is equal to a vector divided by a. That is a vector divided by एटा को मु वेक्टर फॉर्म लबा को चाहूची. वेक्टर फॉर्म नै गली ताल कोन करबी मैग्नीट्यूड दे देबी दैट इज इक्वल टू योर a cap. So unity vector is equal to a vector divided by magnitude of a vector. एटा को मु यूज करी मु कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म को जीवी. ओके ठीक अछि. इन डाउट हेले तमे कमेंट माध्यम रे मते कहि परिबो. नेक्स्ट वीडियो रे मु रिप्रेजेंट करिबी. इफ यू नो स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 एयर बेस रे मु नउची q1 q2 divided by r square. This is equal to your scalar form. This is only magnitude, no vector sign. This is equal to your scalar. बर्तमान वेक्टर नेली एपटे भी वेक्टर रिप्रेजेंट करियो पड़ियो मते 1 by 4 pi epsilon 0. दिस इज ए कांस्टेंट q1 q2. दिस इज इक्वल टू स्केलर चार्ज. यू नो चार्ज इज स्केलर. दिस इज इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट q1 टू q2 डिस्टेंस. ताक मु कोन करिवि वेक्टर करि देली. वेक्टर कले r मैग्नीट्यूड दे देली. दिस इज इक्वल टू योर सिंपल r स्क्वायर कर देली. दिस इज इक्वल टू अगेन योर r स्क्वायर. ताले मु r टा को कोन कली वेक्टर कर देछि. एठी कोन करिवि मैक्सिमम मु इनटू करि परिवि यूनिटी वेक्टर. दिस इज इक्वल टू योर 1. सो नो इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. सो f vector is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r vector magnitude square. This is again r square and this is equal to your 1. तेणु एथरे 1 इनटू कर देली किंतु वेक्टर फॉर्म को से आसी गला. ओके यू कैन राइट अगेन q1 q2 divided by this is equal to r cap. R cap is equal to r vector by magnitude of r. This is equal to r vector square.
finally is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by uc r magnitude square r magnitude, that is q and r vector. So this is equal to in vector form. So this one is one vector form, this one is one vector form, this is equal to unit vector in vector. Okay, this is equal to Coulomb's law in vector form. ठीक अछि. नेक्स्ट वीडियो रे आमे आलोचना करिबा लाइन्स ऑफ फोर्स विषय. थैंक यू.